think. Why? Why? But what is happening? Many qualified candidates are trying to enter this industry, but still companies are searching the right candidates. The problem is that we are selecting so many disciplines which may be not required, which may not be suitable to the client and candidates, client and customers. So in this case, they are not selecting you because you don't have accreditation courses. You don't have additional courses which they are looking for. So EIT, we are going to fill this gap. What is the gap? A gap between the syllabus and industrial needs. This makes the students unemployed. We are civil engineer, we are mechanical engineer, but we are not able to get even 3 years, 4 year experience. We don't have experience. So we are trying to focus to fill those gaps within 15 days or 20 days, 3 months. That classes, that training, we will scale them, we will improve his skills, and then they can be equipped. Instead of 3 year experience, they can get this experience within 15 days. Some reasons, because they don't have area of specialization. How many subjects helpful for your person? Is our education system promoting a practical culture? I have been in this field since 22 years in quality, and I can tell you that 92 to 2000s in Bihar, I can challenge you in Bihar, maybe around 50 QA/QC personnel in Bihar, 1992 to 2000. But between 2000 to 2005, there was a ratio which exceeds around 4 to 500. Why? Because like you are working in the Middle East, you know that these courses are available in Chennai. These courses are available in Andhra. So you are guiding your people, your relatives, and then they are going to get these courses, and then they are mobilized, and they are. So nowadays, especially I am talking about QC courses. QC courses, they are at the moment, especially civil, mechanical, electrical, instrumentation, demanding. The peoples are not available. So this training is promoting to get a practical, which is missing from syllabus. They are not able to get this education as they are getting as a theory. What are position fit your for qualification? That is also important. We have done the engineering, then we have to choose. We have to go in a designing, or we have to go in a quality field, or we have to select a planning. If you want to go in planning, do the Primavera. If you want to go, if electrical engineer, they can go in designing. They can do so many courses like SCADA, PLC. If electronic, they can go for MATLAB courses. Same, if you want to choose a quality, then you have to do the quality courses such as C-Suite, WB Gas, and English. Are you able to specialize job without any training? I have seen, because I am traveling, I am going to conduct interview, and I have so many my relatives that they are not able to get the job because they don't have experience. So we are recommending them that instead of only just degree is not enough, you have to go additional courses. Are you confident to work effectively? This is also missing. These are the reasons. Job market awareness. This is also very important, that we are not aware that what market demands. So we can choose the sector as they need. How much confident you are, your linguistic ability, awareness of working culture, are you ready to face technical interview? This is also a big reason. A lot of qualified, even gold medalists, but they are, sometimes they don't want to face the interview. So personality development, your proper approach, that's also we are going to talk in details. So PIT syllabus, actually as per the global standards. As I explained you earlier that बेहतर है कि मैं जी कुछ ये जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने बनाया है, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आईएसओ के, आईएमएस के, 9001 के, 14001 के, 18001, these are the 3 standards. But other than this, there is a some कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे डिसिप्लिन के भी स्टैंडर्ड्स हैं. इलेक्ट्रिकल है तो एडीसी है, आईएसी है, मैकेनिकल है तो एपीआई है, एसटीएम है जी. तो उन स्टैंडर्ड पे हमने ये सिलेबस बनाया.
पेट्रोलियम फील्ड कंस्ट्रक्शन। पेट्रोलियम फील्ड कंस्ट्रक्शन क्या है? पेट्रोलियम फील्ड कंस्ट्रक्शन है कि डिजाइनिंग है, प्लानिंग है, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, कमीशनिंग है जी। उसके बाद है दूसरा QHSE, क्वालिटी एंड हेल्थ सेफ्टी। Q for quality, H for health, quality health, S for safety, E for environment. This is nowadays. Earlier, in the all consultant and the client, they are looking QC manager is a separate discipline, QA manager is a separate discipline, safety manager is a separate discipline. But nowadays they have integrated. That is called IMS, Integrated Management System, the collaboration of 9001, 14001 and 80001. Non-destructive test methods. हमारा PIT सिलेबस क्या है? Non-destructive test methods किसको कहते हैं? कि हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को, कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं बिना ब्रेक करके, बिना तोड़ के। जैसे मिसाल के तौर पे वो क्या है? वो है जैसे बच्चे पेट में अल्ट्रासाउंड से पता लगा मटेरियल को आरती चेक करके हम पता लगा लेते हैं कि उसमें वेल्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं, PT करते हैं, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना। एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मींस देन उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं उसको, यानी कि वो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते और ये बर्बाद नहीं होगा, ये टेस्ट होगा एंड यू कैन यूज। सॉफ्ट टेस्ट। सॉफ्ट टेस्ट क्या है? हमने इस पे ध्यान दिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ हमने हमारे कोर्स में ये चीजों का रखा है कि इंटरव्यू आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपकी रिलेवेंट टू जॉब से रिलेटेड है, उसको रखा है। इंटरएक्शन है, 2 टीमों में 20 का है तो 4 ग्रुप में रखा है कि आपको प्रोक्योरमेंट के बारे में भी जानना है, आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बन जाओ, QC मैनेजर बन जाओ, QC इंजीनियर बन जाओ, कंस्ट्रक्शन का भी काम करना है। मीन्स ये रोटेट करके, ताकि वो चारों डिसिप्लिन, 5 जो एक्टिविटीज मेन है उनके बारे में उनको जानकारी हो। तो सॉफ्ट स्किल में मैंने उसका खास ध्यान रखा है। डिटेल मैंने पहले ही बता दिया था कि पेट्रोलियम फील्ड कंस्ट्रक्शन क्या है? दिस इज अ डिजाइनिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वांटिटी सर्वेइंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन। किसी भी प्रोजेक्ट पे इसका होना, इन एक्टिविटीज को करना निहायत जरूरी है। डिजाइन मींस ऑल द ड्राइंग दे हैव टू रिव्यू, देन दे हैव टू मेक द प्लानिंग, देन दे हैव टू मेक ए bill of material, take of material, purchase the material, and then control the material. Then the quantity surveying. This is a QHSE, quality and health and safety. Then destructive method. As I told you, there is a 4 methods to check, to verify the non-destructive. First is dye penetration. Another is magnetic particle test, ultrasonic test, radiographic test. These are the 4 is required. Dye penetration test we are doing if we want to know the surface if there is a crack. Same thing magnetic particle करें, but some things is not visible, then we can use UV and radiography. Then now, if you want to keep quiet, you will be like this. और अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, प्लीज आप PIT ज्वाइन करें, अपने लोगों को बहुत बताएं कि these are the courses जो उनके अवेलेबल हैं, ये कोर्सेज वहां जा सकते, मैं अटेंड कर सकते। NDT लेवल 2, दूसरे हैं वेल्डिंग के कोर्सेज, तीसरे हैं पेंटिंग के कोर्सेज, चौथे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 3 मंथ के कोर्सेज हैं, एडवांस डिप्लोमा इन पेट्रोलियम फील्ड है, एंड देन QA इंटरनल ऑडिटर एंड QA इंटरनल। हमने उन कोर्सेज को, क्योंकि मैं सर्टिफाइड लीड ऑडिटर हूँ, मुझे मालूम है कि वो लोग जो ग्रेजुएशन कर लिए या जो IE की उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लीड ऑडिटर की कोर्स करो, इंटरनल ऑडिटर की कोर्स करो, और इसकी सारी दुनिया में जरूरत है। हर जगह आजकल कंसल्टेंसी ऑफिस है, हर कंपनी में ऑडिट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड दे कैन गेट मिनिमम 4 to 5,000 रियल एज ए ऑडिटर। दूसरे कोर्सेज जो है, चलो उसमें कोर्सेज ऑफर मैंने आपको NDT लेवल 2 बताया, 3.1 बताया, बिल्डिंग के कोर्सेज हैं। ये बिल्डिंग का मैं वहाँ प्रिपरेटरी कोर्स है। ये जो कोर्सेज हैं ये वर्ल्ड वाइड अप्रूव एंड एक्रेडिटेड कोर्सेज है। इस कोर्स का जो अगर वो 5 दिन का कोर्स होता है और 5वां दिन वो एग्जाम होता है, बट इट्स नॉट इजी टू क्वालिफाई, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने उनके लिए प्रिपरेटरी की कोर्सेज रखा है, ताकि वो उस कोर्स के लिए जब रेडी हो तो वो पास कर। दूसरा है QA इंटरनल ऑडिटर, QC इंजीनियर इंस्पेक्टर, QC इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है। भाई साहब ने बताया कि मेरा बैकग्राउंड सिविल से है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में होंगे, प्रोडक्शन में होंगे, बहुत सारे
सिविल क्यूसी में भी जा सकते हैं। अब सिविल क्यूसी में है तो उसको मैंने इंटरप्रिटेशन पूरे जो हमारे सिलेबस हैं वो आईएसओ बेस पे है, उसके साथ ही साथ डिसिप्लिन वाइज है, एक्सकवेशन क्या है, बैकफिलिंग क्या है, स्लम टेस्ट क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, हाउ टू डू द रीइंफोर्समेंट इंस्पेक्शन, हाउ टू डू द कंक्रीट कास्टिंग, व्हाट आर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सो दीज आर द थिंग्स अवेलेबल है। जहां हम चाहते हैं कि वो फ्रेश इंजीनियर है, वो 3rd ईयर में है, वो भी कोर्स कर सकता है, जो 2-3 साल से बैठा वो भी कर सकता है। तो सिविल क्यूसी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेम चीज इलेक्ट्रिकल में भी है। इलेक्ट्रिकल में भी है तो उनको वो स्टैंडर्ड्स के बाद उसके डिसिप्लिन के मुताबिक केबल वे क्या है, किस किस रूटिंग में जाती है, ट्रेन के थ्रू जाती है, कंड्यूट के थ्रू जाती है जी, अबव ग्राउंड, देन स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, तो वो सारे टेस्ट को मैंने उसमें रखा है, सब चीज डिफाइन की है। केबल कैसे करते हैं, इंसुलेशन मेकर कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर टैप चेंजर रेशियो क्या है, बाइंडिंग इंसुलेशन क्या है, सो मेनी थिंग्स। तो वो चीज विदिन 15 डेज 20 डेज ये मॉड्यूल्स पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, स्पेशली सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर ये भी एक नाउअडेज बहुत डिमांडिंग कोर्स है। जो सिंपल एजुकेशन है, जो टेक्निकली उनके पास नहीं है, उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर के कोई मॉड्यूल तैयार किए हैं, और ये कोई ज्यादा नहीं है, 15,000 की। एचएससी में हमने बताया कि हमने आईयूएस से टाई अप कर रखा है, अभी हम आईयूएस कराने चाहते हैं। फर्स्ट बैच जो हमारा है अभी 2 जून से एनडीटी के शुरू है। तो अगर आप, मैं इस प्लेटफॉर्म से भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अपने अजीज को बैक टू इंडिया, ये तो बड़े फर्क की बात है कि आज तक ना तो बिहार में है, ना झारखंड में है, ना यूपी में है जी, चेन्नई जाना पड़ता था, तो आज घर पे है, अब इसका फायदा उठा सकते हैं। प्लेस ग्रैंड चंद्रा, वी ऑफर 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी वी विल असिस्ट देम, वी विल गाइड देम, एंड डेफिनेटली मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर वो ये मेहनत के साथ ये कोर्स करते हैं तो उनको जॉब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What makes youth exceptional from others? First time quality training, Bihar Petroleum is job for our courses, it's a job opportunity in India and abroad, not only quality but everywhere. Provide us in level 2 certificate for NDT. वर्चुअल लेक्चर एंड क्लासरूम है, हमने ऑलरेडी जो अभी कोर्सेज करने जा रहे हैं सब इसमें एक्सपर्ट है। द ट्रेनर्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, दे आर गोइंग इन दुबई एंड अबू धाबी, सो दैट ट्रेनर विल ट्रेन दीज ऑल कोर्सेज। इंडिविजुअल ट्रेनिंग है, केस स्टडी मेथड है, प्लेसमेंट सपोर्ट है। नाउ डिसाइड वेदर यू वांट मे बी और यस। Are you ready? Join with us, achieve your life. Learning today, leading tomorrow. ये हमारा एड्रेस है, ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, ये पटना फ्रेजर रोड ग्रैंड चंद्रा में है, ग्रैंड चंद्रा कॉम्प्लेक्स में है, जो कि आपके दूरदर्शन के सामने है। और आप ये कह सकते हैं कि मोरिया जो गांधी मैदान के 5वां बिल्डिंग है ये। और एक बात है जो बताना मैं भूल गया कि चूंकि बिहार अंजुमन एजुकेशन से जुड़े हुए, मैं भी उसका एक एक्टिव मेंबर हूं, तो मैं यहां से ऐलान करना चाहता हूं कि बिहार अंजुमन के रियाज चैप्टर से रिकमेंडेड मैं हर बैच में एक बच्चों को फ्री अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। लेवल 3 सर्टिफिकेट जो होता है वो लेवल 3 ही इशू कर सकता है, इज सर्टिफाइड, इज ऑथराइज्ड। जैसे कैसे एक्सटर्नल बॉडी है आईएसओ वगैरह की, तो वो अगर लेवल 3 का है और वो मेरे इंस्टीट्यूट के लेटर हेड पे जी अक्रेडिटेशन। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है शाहिद भाई के लिए तो सवाल कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसमेंट सपोर्ट में आप डोमेस्टिक सपोर्ट करते हैं या गल्फ के लिए भी? पहले मैं थोड़ा अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं QHSE मैनेजर हूँ, विगत का 22 साल से यहाँ हूँ। मैं वैसे भी सपोर्ट करता रहा हूँ अदर देन जी जी। तो डोमेस्टिक की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातें करना है कि डोमेस्टिक एज वेल एज अब्रॉड वी विल प्रोवाइड असिस्टेंट सपोर्ट्स। It does not means that I guarantee you I will give you the job. तो बिल्कुल सपोर्ट मैं उनको गाइड करूंगा। मेरी ट्रेनिंग ऐसा है कि they will not stand by नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह उनको 100% सपोर्ट।
डॉक्यूमेंट कंट्रोल का जो कोर्स है उसमें कंप्यूटर की नॉलेज में कंप्यूटर एक्सेल वर्ड ये सब आना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कभी कंप्यूटर चलाना ही नहीं सीखे, तो आप क्या डॉक्यूमेंट तो क्या वो कंप्यूटर के भी वो एक्सेल्स वगैरह आप सिखा देते हैं? देखिए ये देखें, जिनको अब कंप्यूटर एकदम नहीं आता है तो 15 दिन में तो आप कहाँ से उनको इक्विप कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर डेफिनेटली आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोलैबोरेशन और कंसोलिडेशन है, तो अगर वो स्किल उनके पास है, मैंने दो चीजें कहा कि 10+2 है और उनको पढ़ाई ड्रॉप कर गया है तो वो एनडीटी लेवल 2 में जा सकता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर में जा सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना। कम्युनिकेशन तो उनका अपना है, हम उनको डेवलप करेंगे, हम उनको स्किल डेवलप करेंगे उनके डिजिग्नेशन के मुताबिक। लेकिन अगर कंप्यूटर एकदम नील है, जानते नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत होगी। बट डेफिनेटली हम हमारे सेंटर में भी कंप्यूटर्स है, लेकिन ये नहीं है कि हम उनको डेली कंप्यूटर ट्रेनिंग उनको देंगे। हम उनको डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर, हाउ टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू सेंड ट्रांसमिटर्स, हाउ यू आर कंट्रोलिंग, रिव्यूइंग, अपडेटिंग, सुपरसीडिंग, दीज आर द टेक्निक्स व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रेन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ख्याल ये है कि इसमें एजुकेशन लेवल भी अगर बताया जाए कि इस ये एनडीटी के लिए एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, प्लस टू होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए या किस फील्ड का वो बंदा होना चाहिए, क्या उसे पहले से एडवांस में आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। फ्रेश हमने कहा था, फ्रेश इंजीनियर, हमने ये जो कोर्स डिफाइन किया है फ्रेश इंजीनियर के लिए या 3rd ईयर्स में पढ़ रहे हैं, जो कि क्यूसी इंजीनियर के कोर्सेज हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर के कोर्सेज हैं, पेंटिंग इंस्पेक्टर के कोर्सेज हैं। लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो 10+2 ग्रेजुएशन सिंपल करके छोड़ दिया है वो भी एनडीटी लेवल 2 वेल्डिंग कोर्स और पेंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस उनको है। ओके, शुक्रिया। ये मोर और लेस आपका एक ऑफिस या क्लासरूम दिख रहा है। जी जी। इज नो लैब टाइप इक्विपमेंट्स, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे देंगे? नहीं, मैंने आपको बोला कि हमारा टाई अप लेवल 3 के साथ है। मैं उनको वहां से ला रहा हूँ, वो जो इक्विपमेंट उसमें देख रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज उनके रिक्वायरमेंट में है वो हम उनको उसमें प्रोवाइड करेंगे। आपके लीफलेट से पता चला है ट्रेनिंग मिलेगी, एग्जाम देगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड। आप कहीं किसी प्रोजेक्ट को ले जाएंगे, साथ लीड ऑडिटर रहेगा, प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे जाके सीनियर के साथ काम करेगा, प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही बात है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमारा प्रोजेक्ट पे टाई अप नहीं है किसी के साथ। तो इसमें आपकी कई प्रेजेंटेशन में क्लासरूम से एम्फसाइज होता है लैब या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नहीं, प्रैक्टिकल मैं आपको फिर बता दूं कि इसीलिए मैं अगर चाहे तो मैं दिखाना, मेरा जो मॉड्यूल है मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को इक्विपमेंट मतलब नाम पता हो, हैंडल करना पता हो, यूज करना पता हो, मैं डिटेल भेज दूंगा। लेकिन मैं एक चीज, एक्चुअली यहाँ वक्त कम है, मेरे पास वो क्लास साइट हमारे पास मटेरियल मॉड्यूल तैयार है जिसमें प्रैक्टिकल के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट पे आप ले जाना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट कंप्यूटर पे लाके हम प्रोजेक्ट दिखाएं आपको, हम टाइप ऑफ वॉल दिखाएं, टाइप ऑफ फ्लैश दिखाएं, पाइपिंग ग्रेड बताएं या ट्रांसफार्मर बताएं, स्विच गियर बताएं, ग्लैंडिंग बताएं, टर्मिनेशन। मेरे पास वो कोर्स की मटेरियल तैयार है, समझिए ना। लेकिन ये एक अच्छा सुझाव है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि हमारा किसी प्रोजेक्ट के साथ, बट आई एम वर्किंग ऑन रिफाइनरी ऑन ब्राउन। जी, लेकिन इन 3 महीने कोर्स आप इतना शॉर्ट कैसे ऑन साइज करके आप 15 दिन में कैसे? नहीं, टेक्स 3 मंथ। बात सही है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि वेल्डिंग की कोर्सेज सिर्फ 5 दिन में करके और कंप्लीट करके आ रहे हैं। लेकिन मैंने इसीलिए प्रिपरेटरी पर वो जो ये लीड ऑडिटर्स पे इंटरेस्टेड था, आईएसओ वाले लीड ऑडिटर्स का जो है कि आप सही कह रहे हैं, आईएसओ इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है इसके हर कंपनी में जी उनके क्वालिटी पे जी। ऐसा ही यहाँ पर आईएसओ पे बहुत डिमांड है जी हर कंपनी जी। नहीं। 20 दिन का मैं करना चाहूँगा, लेकिन आई सरप्राइज कि 3 महीने या महीने भर का कोर्स आप 20 दिन में कौन सा नहीं, मैं आपको बता दूं, आईएसओ के कोर्स जो लीड ऑडिटर के कोर्स होते हैं वो सिर्फ 5 दिन के होते हैं। मैं किया हुआ हूं, मैं सर्टिफाइड लीड ऑडिटर। जी जी जी, वो 5 दिन के होते हैं, लेकिन मैं 5 दिन नहीं करने जा रहा। मुझे पता है कि आईएसओ के 6 मैंडेटरी प्रोसीजर क्या है। मैं अगर बोले तो मैं बता सकता हूँ
control of record, control of documents, corrective action, non-conformation control, corrective and preventive action. These are the 6 mandatory procedures जिसके बेस पे वो पूरे काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि शाहीन साहब का एक खास सेशन फारूक साहब के साथ होना चाहिए मज़ीद मालूमात के लिए। नहीं, it's okay, वो तो अच्छा लगेगा कि हमारे लिए खुशी की बात है। मैं दरअसल आज की ज़रूरत यही है शायद। शुरुआत है इंशाल्लाह इसको मिनिमम 3 to 6 होगा। अभी एडजस्ट भी कर पाऊंगा 15 दिन फुल टाइम की 8 घंटे चलाऊंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे लाहौरी काबे के पास रहता हूँ, आप प्लीज़ आए। मैं कोशिश हमारी, देखिए हमने यही बोला 6 महीना पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं। मैं 15 दिन में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाने जा रहा हूँ, ये फर्क। उनके 2 घंटे, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं हम 5 घंटा पढ़ाएंगे। प्लस जैसा कि उन्होंने कहा इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। दे आर नॉट एबल टू स्पेंड 2 years। तो उन कोर्सेज को मैंने इस तरह करके रखा और रियली इसकी ज़रूरत है। मैं इसी फील्ड से हूँ, मुझे मालूम है, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, मिलते नहीं हैं। तो क्रैश कोर्स होगा, फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स। और कोई सवाल अगर आप भाई लोगों से है तो प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब और जोरदार तालियां।